Now this is Financial Accounting 2 for BCom second semester. Already I have discussed 6 problems. I am leaving 7th problem because in 7th problem you see it has asked receipt and payment account also, and income and expenditure account also, and balance sheet. So this type of problem you may not get in the exam. So according to examination point of view, this is not important because you won't get that much time to prepare receipt and payment, income and expenditure. And so if you want, you take the screenshot of this problem if you just go want to go through with that. So this is the problem of 7th problem, but I am not discussing it. It's clear. Now let's start 8th problem. So the Jai Bharat Sports gives you the following receipt and payment account for the year ended 31st December 2005, and receipt and payment account is given. Subscription, all the receipts and payments are given to us, and the adjustment it has given. Subscription due on 31st December 2004 and 31st December 2005, and 1500 were 1000 and 1500 respectively. Subscription receive also include subscription for 2006. So last year, current year, next year subscription is given. So you know no how to do when last year's subscription and current year subscription and next year subscription is given. What is the rule I have told you? Last year subscription you have to minus, next year you have to minus, only with related with the current year subscription you have to add it. It's clear, just simple, you have to remember. And when we are preparing opening balance sheet, outstanding subscription 2004 we have to take into the opening balance sheet also. So when we are taking in the opening balance sheet, again that 1000 we should not deduct because already we have taken it in the opening balance sheet. So when you are doing income and expenditure account, so what you have to do, only you have to add 1500 current year, and then next year is how much it has given, 2006 300, you have to minus, that's all. It's clear. Regarding the subscription, it's clear, no? So now the payment account, we have payments we have to take on the expenditure account, and receipts we have to take it on the income account. First we have to prepare opening balance sheet. Why we are preparing the opening balance sheet? See here, sports equipment on hand 31st December 2004 was 1200. The value placed on equipment on hand on 31st December 2005 is 1300. The mowing machine was purchased on 1st July 2005 and is used depreciated 20% per annum. Prepare income and expenditure account and balance sheet relating to 1988. This is not 1988, I think so, 2005. The year is different, it is given. So let's check in the textbook. So balance sheet as on 31st December. This is the opening balance sheet, cash in hand, cash at bank. So whenever in the receipt and payment account, this bank is cash is given to us, no? This you have to take it in the receipt and this opening balance sheet you have to take it. It's clear. So 300 to 2500 we have taken it, and outstanding subscription just now I told, no? And so sports equipment it has given on 2004, that is opening 31st December 2004 closing means it will be opening for the in the opening balance sheet we have to take this balance sheet as on 31st December 2004 we are preparing. So 1200 we are taking it here. So after adding this all, we will get the total as 5000. It's clear. ओपनिंग बैलेंस शीट पहले अपन ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में से ले लिए टू अमाउंट्स, ये जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2004 का ले लिए, स्पोर्ट्स इनकम, ये दो चीज़ें अपन एडजस्टमेंट्स में ले से लिए, ठीक है ना. उसके बाद ये टोटल करें तो अपने को 5000 आया. दैट 5000 वी विल राइट इट एज कैपिटल फंड. इट्स क्लियर, नो? नाउ यू सी working notes. Depreciation of sportsman, opening is given to us. Opening is given and purchases is given. Purchase sports equipment purchase 1500 is given here. It's clear, no? That is given, and the value plays opening is given 1200 and closing is given. So we have to, whenever this given opening, closing and purchases is given, we have to calculate the depreciation.
ठीक है। ऐसे हाल में जब अपने को क्वेश्चन में ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज ऐसा दिए अपने को, तो जब क्या करना रहता अपने को डिप्रिसिएशन मालूम करने का रहता। सो इन द वर्किंग नोट सी है, ओपनिंग बैलेंस ले लिए अपन, ठीक है। डिप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस इज डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1200 ओपनिंग बैलेंस। परचेजेस जो अपने को दिए ना रिसीप्ट पेमेंट साइड में जो है ना वो ले लिए अपन, दोनों को ऐड करें तो 2700। क्लोजिंग बैलेंस माइनस करने के बाद अपने को जो आता 1400 डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन अपने को कहाँ लेने का रहता, एक्सपेंडिचर साइड में लेने का रहता, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक्सपेंडिचर साइड में लेने का है अपने को डिप्रिसिएशन। And depreciation, how much we got? 1400. It's clear. Now we are preparing income and expenditure account. Income and expenditure account of Jai Bharat Sports Club for the year ending 31st December 2005. So in this first we will see the items in of the payment side, ठीक है। स्पोर्ट्स साइड, इसके लिए अपने को क्या करना रहता, यहाँ पर पेमेंट साइड में जो है सो देखना रहता अपने को ग्राउंड्समैन फी, मोइंग मशीन का जो है सो अपने को यहाँ पर सिर्फ डिप्रिसिएशन लेने का रहता, ठीक है। मोइंग मशीन एक एसेट है ना, ये जो है सो अपने को बैलेंस शीट में लेने का रहता मोइंग मशीन बोल के 1500, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन जो है सो अपने को कैलकुलेट करने का रहता। द मोइंग मशीन परचेज 1 जुलाई को परचेज करे लोग, तो 1 जुलाई को परचेज करे तो 6 मंथ्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ्स होते हैं, 20% कैलकुलेट करना है अपने को। सो जस्ट ओनली डिप्रिसिएशन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस। रेंट लेना है अपने को, सैलरीज टू कोचेस लेने का है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सी है, टूर्नामेंट फंड इज गिवन नो। सो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर यहाँ पर फंड है, अगर यहाँ फंड नहीं रहता, केयरफुली लिसन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग। ये फंड नहीं रहता तो ये एक्सपेंसेस अपन डायरेक्टली यहाँ पर ले लेने का रहता है एक्सपेंडिचर में। अगर फंड रहा, जो भी फंड से रिलेटेड उसके एक्सपेंसेस रहते ना, तो इसको क्या करना रहता, बैलेंस शीट में लेने का रहता, ये दोनों को माइनस करके, फंड में से ये एक्सपेंसेस को माइनस करके लेने का रहता। समझ में आ गया ना, कोई सा भी फंड आपको एग्जाम में दे दो और उसके रिलेटेड यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर है तो आपको नहीं लेने का है, बैलेंस शीट में माइनस करके लेना है, ठीक है। अगर आपको टूर्नामेंट फंड नहीं है, समझो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंडिचर में ले लेने का है। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वी हैव टू टेक जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज अपन ऑलरेडी वहाँ देख लिए, ये जो है सो बैलेंस शीट में आता। सो समझ में आ गया ना क्या क्या आइटम्स लेना है अपने को एक्सपेंडिचर साइड में। ग्राउंडमैन फी, रेंट, सैलरीज टू कोचेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड डिप्रिसिएशन का देखिए अभी अपन मालूम करें। सो ओपनिंग ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग करें तो अपने को ये डिप्रिसिएशन आ जाता। और मूविंग मशीन का डिप्रिसिएशन 1500 इंटू 20/100 इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए ही अपन उसको यूज़ करें। सो 150 वी आर गेटिंग दिस डिप्रिसिएशन। सो इट्स क्लियर नो, 11,350 अपने को जो है सो यहाँ का टोटल आ रहा। अब नेक्स्ट क्या करना रहता अपने को, इनकम साइड के लेना है तो अपने को कहाँ देखना रहता, यस यू शुड टेल मी, कहाँ लेना रहता अपने को, क्या देखना रहता अपने को, इनकम देखने का है तो यस वेरी गुड, वी हैव टू सी द रिसिप्ट्स, ठीक है। रिसिप्ट देखना रहता अपने को। रिसिप्ट में अपन क्या करें, ऑलरेडी ये जो दो है कैश इन एंड कैश एंड बैंक, ये कहाँ आ जाता, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता, अपन ले लिए वहाँ पर ये। अब अपने को सब्सक्रिप्शन लेने का है, ये जो है सो फंड्स लायबिलिटी में आता, लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी में आता, ये भी अगर अपने को हाफ कैपिटलाइज बोल के दिए तो लेना रहता। नेक्स्ट है अपने को एंट्रेंस फी वी हैव टू टेक टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में लेना है अपने को। डोनेशन फॉर पैविलॉन, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक बोले तो यहाँ पर अपने को जनरल और स्पेसिफिक रहते डोनेशन में। स्पेसिफिक बोले तो पर्टिकुलर को अगर रहा तो ये लायबिलिटी में आता, जनरल अगर स्मॉल अमाउंट रहा तो इनकम में आता। ये पॉइंट आपको याद रखना रहता, ठीक है। नेक्स्ट है अपने को सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास। समझ में आ गया ना, तो अपन यहाँ पर क्या क्या नहीं ले रहे, अपन कैश इन हैंड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। कैश इन हैंड नहीं लेना है, कैश एट बैंक नहीं लेना है, एंड टूर्नामेंट फंड नहीं लेना है अपने को, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं लेना है, डोनेशन फॉर पैविलियन नहीं लेना है, ठीक है। ये आइटम्स को छोड़ के अपन बाकी के ये पूरे आइटम्स जो है सो कहाँ पर लेना है अपने को, इनकम साइड में लेना है। सेम वैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को अपने को ये एडजस्टमेंट है यहाँ पर
ठीक है, एडजस्टमेंट है ना, ये ओपनिंग अपन ऑलरेडी ले लिए, बल्कि इसको अब इग्नोर कर देने का है। 1500 जो है सो 2005 करंट ईयर का है, ये 300 माइनस करके लेने का है। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इस सो सिंपल, अगर आपको आराम से समझे तो आप, बहुत आसान है ये चैप्टर। नाउ सी सब्सक्रिप्शन को अपन क्या करें, देखिए 8000 जो है सो अपने को एक्चुअली जो इन रिसिप्ट में है वो ले लिए हम, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1500 जो है सो कौन सा है, ये अपने को एट द एंड का है, मतलब करंट ईयर का है, ऐड कर लिए। 2006 का माइनस करना है। नेक्स्ट है अपने को एंट्रेंस फी, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ग्रास, यहाँ तक का अपने को टोटल कर लेने का है। ठीक है, 11,350 जो है सो आपको कौन सा टोटल आया, ये 11,350 आपको एक्सपेंडिचर साइड में आया। 11,350 उसमें से क्या करना है आपको, यहाँ पर का इनकम का टोटल माइनस करना है, यहाँ पर तक का पहले टोटल कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ तक तो 11,000 केयरफुली सी हियर, अपने को एक्सपेंडिचर का टोटल 11,350 आया ना। उसके बाद आप देखिए इनकम का टोटल करिए, आपको 9,400 आता। चेक कर लो आप लोग, 11,350 में से 9,400 माइनस करें तो आपको 9,000, ठीक है, 1950 आ रहा अपने को। ठीक है, 11,350 माइनस 9,400 1950, तो अपने को एक्सपेंडिचर साइड में ज़्यादा आया टोटल। तो यहाँ पर आपको लिखना रहता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम डेफिशिट बोल के लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है? डेफिशिट। समझ में आ गया ना? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम, एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स मूव टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना रहता है आपको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखिए आपको कैपिटल फंड, जो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट में आया ना, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए तो अपने को जो आया था ना, ये आंसर है, उसमें से डेफिशिट माइनस कर देना, सरप्लस रहा तो ऐड करना रहता डेफिशिट। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 300 जो जस्ट नीचे दिया अपने को, टूर्नामेंट फंड, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देना है। नेक्स्ट है आपको लाइफ मेंबरशिप डोनेशन टू पैविलॉन, जो रिसिप्ट साइड के है। सो समझ में आ गया। 11,650 आपको डेबिट साइड, यहाँ पर लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया। ये जो है सो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्लोजिंग का बैलेंस ले लेना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एसेट होता, याद रख लीजिए, करंट ईयर का एसेट होता सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर का जो है सो लायबिलिटी होता। ये सब्सक्रिप्शन का याद रख लो आप लोग, नोट कर लो पॉइंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी अपन जो क्लोजिंग जो रहता दिए ना अपने को, डायरेक्ट भी आप ले ले सकते हैं, ये नहीं भी दिखा है तो क्लोजिंग 1300 डायरेक्ट दिए अपने को, वो भी ले ले सकते हैं आप। मोइंग मशीन डिप्रिसिएशन माइनस करके लेना है 1350, सो यू विल गेट बोथ साइड 11,650। ठीक है, 11,650 आपको दोनों साइड टैली हो जाता। इट्स सो सिंपल, प्रैक्टिस इट वेल, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। इट्स क्लियर।